I'm sharing my screen. So whether the screen is visible, you can see the screen. Yes, sir. Okay. Okay. Wherever Yes, you Yes, find sir. it. Okay. Fine. So we'll be starting the discussion. We'll be since we have to discuss a lot of things. Wherever you find any problem, you can interfere me. You can ask any question in between. If you are not asking anything, I'll presume that you are understanding everything and you are listening to me properly. Wherever you find any problem, you please raise your hand or you ask. I'm not unmuting anyone. You unmute. You mute yourself based on your requirement. So in today's class, we'll be discussing the different branches of pharmacology and, in fact, scope of pharmacology. So just to have an overview, in last few classes we had discussed what is pharmacology and what actually it deals with. So we know that pharmacology is a science in which we study the action of drugs in some body system, either in the human body or in the animal body. So pharmacology relates with study of drugs in biological systems. So when you study drugs, you have to study a lot of aspects of drug action or about the drugs. So the in last two classes we had discussed that there is in the unit 1 we are studying general pharmacology, and there are two very important branches of pharmacology. One is pharmacokinetics. It is also known as disposition kinetics or ADME pharmacology. And the second branch is pharmacodynamics. It is also known as biochemical pharmacology. So these two aspects are the most important aspects for any drug. We have to know what is the fate of drug, how the drug will be absorbed, metabolized, and distributed and eliminated. And we have to know how the drug will act, what will be the mechanism of action and all these things. So these two branches discuss about these aspects of the drug action of drugs. Well, apart from that, we have to know how the drug is working. Say, for example, any drug is acting over the DNA, or if the drug is acting on the ribosomes, or if the drug is acting on the RNA. We need to know what are the biomolecules, or what exactly at the molecular level how it is acting. So if we have to visualize the mechanism of action or the drug action, drug effect at very micro level, at the molecular level, we need to study molecular pharmacology. So nowadays, molecular pharmacology is a branch of pharmacology which deals basically about the molecular aspects of drug action. So it is an important branch. If you go for post graduation, you will study separate course of molecular pharmacology and drug action. Well, next is chemotherapy. Chemotherapy, you know that it is a science of therapy. It is a science of treatment, which we do with certain chemotherapeutic agents. What are these chemotherapeutic agents? These are the chemicals which act selectively. Say, for example, I'm infected with some bacterial infection. So these microbes, these bacteria are present inside my body. So when I take any antibiotic, those antibiotics selectively kills only those bacteria, not to my cells. So this is selective action. So wherever there is selective action, the science is called, the branch of pharmacology is called chemotherapy. Chemotherapy deals with therapy of bacterial infections, viral infections, fungal infections, anthelmintics, so many. So we'll be discussing all these things in great detail. Apart from that, one important pharmacology is body systems pharmacology. So you have to study, we know there are so many body systems like cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, like that. And wherever you are studying action of any drug over the nervous system, will be called as neuropharmacology. Wherever you are studying the
action of drug over the cardiac tissue or the vascular tissue, it will be called as cardiovascular pharmacology. So like that, it is gastrointestinal pharmacology, immunopharmacology, respiratory pharmacology, like that. So these are the different body systems pharmacology. You can say systems pharmacology. So in the circle line, say for example, here, from here to here, you can see these are the core. These are the core. This is the core of pharmacology. These branches are the core branches of pharmacology. All these branches, this, all are core branches, you can say. These are part and parcel of the pharmacology we have to study. But apart from that, there are certain allied branches also. Say, for example, if you want to design anything, if you want to design any mobile, you need to know the physics, you need to know the electronics, you need to know the hardware. So you need to know a lot of different sciences, not only the instrumentation part only. So when you are studying pharmacology, if the pharmacology is, say for example, in the case of psychopharmacology, if you have to treat any psychotic patient, or if you have to treat any psychological disorder, so first you need to know the psychology of the patient, how the patient behaves, what is the psychology of an old person, what is the psychology of a young boy, or what is the psychology. So you need to know the psychology. Psychology is not a science, it's a part of arts, but since we have to administer drug for influencing the psychological behavior of the patient, we need to know psychology. So psychology combined with pharmacology becomes psychopharmacology. Similarly, if you are making some treatment to clinical cases, clinical medicine, so it will be called as clinical pharmacology. If you are dealing in veterinary patients, it will be called as veterinary pharmacology. If you are formulating some pharmaceutical preparations like injections, tablets, capsules, ointments, anything, and which you will be applying to different animal bodies, so it will be called as pharmaceutical sciences. Accordingly, if you are taking the help of biotechnology, say for example, if you are manufacturing any vaccine, if you are you have to purify any protein, or you have to formulate in the form of vaccine, you have to concentrate the antigens. So what we were discussing, that there are certain core areas or core subdisciplines of pharmacology, core branches of pharmacology, you can say, like pharmacokinetics, pharmacodynamics, molecular pharmacology, chemotherapy, and body systems pharmacology. But apart from these core areas, pharmacology is expanding. Pharmacology is growing and growing. Pharmacology is taking the help of so many sciences, so many disciplines. Like when it takes the help of biotechnology, the pharmacology is modified in the form of biopharmaceuticals. When the pharmacology takes the help of pathology, we say it as toxicology. When the pharmacology takes help of chemistry, we say it as medicinal chemistry. So when pharmacology takes help of genetics, the branch of pharmacology is known as pharmacogenetics. Similarly, when the pharmacology takes help of genomics, what is genomics? It is the study of genetic information of entire population. If you are studying the genetics of one person, it is simply genetics. If you are studying the genetic changes or the genotype of one species or of the whole population, the genetics will be called as genomics. So if you are studying the effect of any drug on a population basis, whether it will work in human beings or like that, so it will be called as pharmacogenomics. So we take the help of clinical epidemiology, and the science becomes pharmacoepidemiology. And when we take the help of economics, health economics, the branch of pharmacology becomes pharmacoeconomics. So we'll be discussing all these things in great detail now onwards. So it was just a flow chart which enumerates that how pharmacology is associated with a lot of other subjects, and accordingly different branches has emerged.
Now, talking about the scope of pharmacology, where a pharmacologist, if you go for higher studies in pharmacology, where you can be placed, and what will be your job prospects? So your job prospects will be these branches. You can be placed anywhere in these branches, wherever you are having knowledge, wherever you are having specialization. So these are not only branches of pharmacology, in fact, these are the scope of pharmacology also. आप पूछोगे कि मेरी जॉब कहाँ निकलेगी सर, तो जहाँ पे एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे बायोफार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन होगा, वैक्सीन प्रोडक्शन होगा, उसका लार्ज स्केल हो, वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। जहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट हो, उनका अगर है तो ये सारे ब्रांचेस में आपका स्कोप बनता है, जैसे जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन और नॉलेज उसमें बढ़ती है। फिर देखें अब वन बाय वन देखें। फार्माकोकाइनेटिक्स वी हैड डिस्कस्ड लॉन्ग बैक दैट जस्ट this pharmacokinetics we had discussed that it simply deals with ADME, absorption, distribution, metabolism, and elimination of drugs. And we also say that what the body is doing to the drug. So we had discussed about pharmacokinetics. The second branch, pharmacodynamics, also we had discussed that in pharmacodynamics we study the biochemical and physiological effects of drugs over the body, and the mechanism of action also. So in other words, we can say that what the drug is exactly doing to the body, whether drug is making any change to the body systems function, or making any physiological or biochemical change, the science will be known as pharmacodynamics. Coming to the chemotherapy, we can say that in chemotherapy, just we had discussed that in chemotherapy, there is selective inhibition or selective destruction of specific agents of diseases like bacteria, viruses, fungi, parasites, or cancerous tissue. So these cells, bacteria, fungi, viruses, parasites, or cancerous tissue, these are not our own cells. These are not our desired cells. Even the cancerous cells, they have originated from our normal cells, but now they are in different cells. They are different cells. They are not our own. Our body doesn't require it, and it needs to be killed. So treatment of cancer is also called as chemotherapy. That's why treatment of bacterial infection, viral infection, fungal infection, parasitic infections, all comes under the purview of chemotherapy. When we say toxicology, obviously toxicology deals with adverse or toxic effects of any drug or chemicals, or we can say it as toxicants. So this part is called toxicology, although the definition is very short, but this science is growing, and toxicology has so many sub branches which we won't be discussing in undergraduate syllabus, but toxicology of say for example, now you can say you see that even baby soaps, baby oils, baby powders, like in human babies, Johnson & Johnson, you might have used the products of these companies. So these companies do a lot of research whether the powder is having any untoward action over the skin of the baby. So for doing that, that company is having a big R&D setup, research and development setup, and has employed a lot of toxicologists and pharmacologists. And you'll be surprised to know that a lot of veterinary toxicologists are appointed in the company. I'm knowing some of them, so that's why I'm saying. So being a toxicologist, you can be appointed in so many places. You can be placed in so many places. Whatever you are eating, that needs to be screened by a toxicologist. Say, for example, athletes, if you know that whenever any athlete is participating in sports, his blood and urine samples are collected and screened for any kind of dope agent, whether he has taken or not. And who is performing the dope test and all these things? The toxicologist is doing by using a lot of sophisticated equipments.
any banned agent, if he has taken any dope agent he has taken, even a single molecule is available in the urine or blood, it will be proven. So we have our scope, we have our engagements in these branches. A lot of scope is there. We'll be discussing great further. Coming to the next branch of pharmacology is clinical pharmacology. Clinical pharmacology is study of drugs in clinics. You can say clinics. What do you mean by clinics? In diseased condition, not in healthy patients, in diseased patients. Wherever the patient, say for example, a lot of animals are coming to our veterinary clinical complex, and if I need to study the action of any drug in diabetic cases of dogs, the study of pharmacology will be known as clinical pharmacology. So you need to observe the clinical observations, how the clinical observations are changing based on the effect of drug. So the next branch of pharmacology is experimental pharmacology. What is experimental pharmacology? It deals with the study of action of drugs in laboratory animals under laboratory conditions. Say for example, if you are studying the effect of any drug on a rat or a mouse in captivity in laboratory conditions, this will be known as experimental pharmacology. You can ask why experimental pharmacology should be studied, why we should study experimental pharmacology. So whenever any new drug is discovered, say for example, this COVID vaccine is being prepared throughout the globe, and it is under trial of different phases. India has completed the phase 1 trials and will be going in phase 2 and phase 3 and phase 4 like that. So where these phase 1 trials are conducted, it is conducted over these laboratory animals. So experimental pharmacology is important. Even for COVID testing, even for COVID vaccine testing, toxicologists and pharmacologists are being engaged. So we have our scope, not only in veterinary pharmacology, we have our scope in human pharmacology, and pharmacology as per se is not having its restrictions to veterinary or medical. A lot of people in veterinary pharmacology, they are engaged in CSIL labs, they are engaged in All India Institute of Medical Sciences, and a lot of they are engaged in Indian Space Research Organization. A lot of graduates from some graduates from this college, they are appointed in NASA also. So research has not its boundaries. You can expand anywhere if you are having the knowledge. Next branch of pharmacology is medicinal chemistry. Say for example, you have to study the effect of any drug. You need to know the chemistry of the drug. You need to know from where it is, from where it has been synthesized, and how to manufacture it, how to design it, what is the chemical structure, and how we can produce the newer drugs. So we should know the chemistry. We should know the chemistry of medicines, and that branch of pharmacology is known as medicinal chemistry. So it is not a branch purely of chemistry. Rather, it's a part of it's a sub-discipline of pharmacology. Next branch is pharmacognosy. Well, a lot of plants, a lot of drugs are obtained from plants and animals, and we need to know what is its source. Say for example, atropine is obtained from Atropa belladonna, and a lot of drugs are obtained from plants or the animals. So study of sources and identification of drugs is known as pharmacognosy. So next branch is pharmacy. What is pharmacy? Pharmacy, you must be knowing that a lot of pharmacy are there in the market. We say sometimes the medical shops also as pharmacy shops. So what this pharmacy is all about? Pharmacy is, in fact, it is a branch of pharmacology which deals with collection, compounding, and dispensing of drugs. What is collection, compounding, and dispensing of drugs? Collection, say for example, you have to manufacture any formulation. You have to prepare any, say for example, ointment, which can be applied as antifungal ointment over the skin. So what you need for that? You need some vehicle in which it should be formulated, like Vaseline or petroleum jelly or lanolin, like that. And you need to have some antifungal drugs, and you will be mixing in certain proportion and you will be formulating. So first of all, you have to collect the raw ingredients. That portion is collection.
then you have to mix it in a proper way with, so that component is called compounding. And after, once it is compounded, once it is formulated, you have to give it to the patient, you have to give it to the owner in a suitable form, either in the form of capsule or in the form of tablet, or in the form of, if you want to give any ointment, you cannot give it raw. You need to pack it in either tubes, or you have to give it in some pots like gallipots like that. So that transfer of the agent from the pharmacist to the end owner is called dispensing. Giving or dispatch of materials is dispensing. So that branch of pharmacology is pharmacy. And a lot of pharmaceutical firms, like a lot of companies like Ranbaxy and so many others are there, they are involved in this pharmacy, and they are using a lot of machines and factories for synthesis of and manufacture and formulation of these drugs, which we get it from the medical shops. So that branch is pharmacy, and we use the products of pharmacy and we prescribe in pharmacology. So the next branch is pharmacoeconomics. It consists of two words, pharmacon and economics. So it is pharmacology combined with economics. Say for example, if you are taking your any relative for treatment of bypass surgery or a treatment of any heart disease, whenever you visit to any good hospital like Apollo or anywhere in India or abroad, first you wanted to have कितना खर्चा लगेगा, इसके सर्जरी में 5 लाख 2 लाख 50,000 10 लाख कितना खर्च आएगा. So that science is important, and nowadays it's much developed. If you go to any organized hospital, after taking your history and all these things, it will give you an estimate that this much amount of expenditure you will be requiring for complete treatment of this disease. So that branch of pharmacology is pharmacoeconomics. You have to calculate the economics of medication. So coming to the next branch is pharmacoepidemiology. What is pharmacoepidemiology? You break it in two words. First is pharmacon and second is epidemiology. What is epidemiology? Anybody can say what is epidemiology? Anybody? Sir, Yes. Study of diseases at population level. So study of diseases at a population level over any local area or. Okay, so if you have to study, so in that photograph you can see the whole world study of where tablets or injections or capsules or pills are being used. So if I am studying the effect of drugs, so if I am studying the effect of any drug or their usage pattern throughout an epidemiological area or throughout one country or throughout one region or throughout the globe, how the effect is changing. Say for example, tuberculosis is not throughout the globe at a uniform pace. In some countries, in some populations, tuberculosis is not there. Somewhere else, tuberculosis is very much there. So that is the epidemiology of the disease. If you go for treatment, obviously the epidemiology of the drug action will change, and that branch of pharmacology will be called as pharmacoepidemiology. So it is concerned with the variability of drug effect between individuals in a population. Say for example, a drug action of any drug over me, and action of drug on any American person, and action of any of that particular drug in a Negro. If it is changing, why it is changing? It is changing due to the climatic variations and the geographical changes. So we can say that this branch of pharmacology, we can say it as pharmacoepidemiology. The next branch is pharmacogenetics. Pharmacogenetics, it consists of two words, pharmacon and genetics. So whether the action of any drug changes with the genetic composition of the individual, whether the action of any one drug on me and yourself, it will be exactly same. No, it cannot be exactly same, because the drug, what the drug is doing to my body and what my drug is doing to the drug, it cannot be exactly same in two cases. If the genetic, because myself, I am genetically different from yourself.
So if I am genetically different from yourself, the response or the behavior of the drug in of the same drug in myself and yourself will change. So that branch of pharmacology is called as pharmacogenetics, in which we study the genetic influences on responses or drug actions in different genetic groups or in different individuals. The second branch is pharmacogenomics. What is pharmacogenomics? In pharmacogenetics, we were studying the effect of genetic influences in one individual. What is the role of my genes, my genetic makeup over the action of drug, action of any drug, say for example paracetamol or enofloxacin, like that. So if I am studying the genetic influences of action of paracetamol in whole human population, so if the pharmacogenetic studies are conducted at a population level, the branch is converted to pharmacogenomics. And nowadays pharmacogenomics is known because doctor prescribes you a lot of drugs, and if you are suffering from fever, the doctor will give you paracetamol, and in certain individuals paracetamol may not work. Why may not work? Maybe if that individual is having a lot of additional genes which synthesizes the those enzymes which breaks down paracetamol. If I'm having those genes, you might have studied polymorphism, single nucleotide polymorphism or like that. So if I'm having additional genes which synthesizes for those enzymes or proteins which break down that particular drug or which metabolizes that drug, if I'm taking that drug will not work in my body, or will work for a very short time. And in a patient who is deficient of those genes or enzymes, that drug will act for a very longer time. So the genetic influences, genetic makeup of individual or genetic makeup in a population is influencing the behavior or action of drug. So those studies we are doing in pharmacogenomics. And why this pharmacogenomics is the future of pharmacology, you can say. आप पढ़ते होंगे कि कोई ड्रग हमने लिया, वो हमें में तो काम ही नहीं करता, वो हमको उस पर असर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? तो हमारे जीन्स, आपके जीन्स जो जेनेटिक मेकअप है, क्रोमोसोम सेम है, माइनर कुछ जीन्स हमारे आप में डिफरेंट है, बट पॉपुलेशन लेवल पे हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स हमारा 98-99% हमारा सेम है। तो जो डिफरेंसेस हैं, अगर पूरे पॉपुलेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी किया था। किसी को आइडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में? एनीबॉडी कैन से? कोई बता सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? चंदन, राजेश, जवाहर, एनीबॉडी? यस सर। हाँ बताओ सर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हाँ चंदन बोलेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, ह्यूमन के जितने भी जीन है उसको स्टडी करना था। इसके लिए कहाँ से सैंपल, सीक्वेंस, हाँ, इसके लिए सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया था? इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, कहाँ से? ये नहीं जानते सर। पूरे ग्लोब में जितने कंट्रीज हैं, जितने ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, हर एक जगह से कलेक्ट किया था। और उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बींग्स में, उसके सारे जीन्स को एम्पलीफाई करके स्टडी किया। इट वाज अ बिग एक्सपेंडिचर, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे। और उस समय लगा कि बेकार में यूएस गवर्नमेंट ने इस पर खर्च किया और इसका क्या आउटपुट है। आज हमें पता चल रहा है कि अभी हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हेल्प से पता है कि इतने जीन्स निग्रोज में ये वाले होते हैं, या अमेरिकन में नहीं है, इंडियंस में ये है। तो ड्रग का एक्शन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। और आज कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि हमें ऐसा डॉक्टर ड्रग दे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सेफ हो, खाने में भी टेस्ट बढ़िया लगे, उसे इंजेक्शन भी लेना ना पड़े, और हमारा बीमारी भी सही रहे। तो सेफ्टी एंड कंफर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट। तो धीरे धीरे साइंस एडवांस हो रहा है और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होते हैं?
कि जो मेडिसिन मेरे में काम करेंगे वो आप में भी डिटो सेम टू सेम काम करे, जरूरी नहीं है। तो अगर आपका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से आपका सारा जीन सीक्वेंस अगर सीक्वेंसिंग करके एक आपका स्मार्ट कार्ड बना दिया जाए, उसके चिप में सारा जीन लाइब्रेरी कोड कर दिया जाए और वो कार्ड अपने पर्स में रखें, जब भी डॉक्टर के पास जाए तो वो कार्ड देते हैं, वो अपना कंप्यूटर में रीड करके देख ले कि इस इंडिविजुअल में पैरास्टामोल को मेटाबोलाइज करने वाला जीन्स बहुत सारे हैं, ओफ्लॉक्सिन इसमें काम नहीं करेगा, सिप्रोफ्लॉक्सिन काम नहीं करेगा, इसमें एमॉक्सिलिन काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर पहले वो सारे ड्रग को छांट देगा, ये देने का वेस्टेज होगा, काम नहीं करेगा। तो समडे और दी अदर हमारे पास फार्माकोजेनोमिक्स के हेल्प से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होंगे और हर इंडिविजुअल का अपना एक स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें उसकी जीन इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें इनकोडेड होगी, जो कभी भी कोई एक डिवाइस से रीड किया जा सकता है। जैसे अभी आधार कार्ड से बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, तो वो पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक आईडी नंबर दिया जा सकता है, आधार नंबर से लिंक किया जा सकता है, नेट पे क्लाउड पे आपका सारा इंफॉर्मेशन लोड किया जा सकता है। आप जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे कोई भी एक्सेस कर सकता है या आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्टली नियर फ्यूचर फार्माकोजेनोमिक्स होगा और इसमें कितने लोगों की जॉब प्रोस्पेक्ट्स की जरूरत होगी, तो इसमें कौन लोग इंगेज होंगे? ऑब्वियसली फार्माकोलॉजिस्ट इंगेज होंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इंगेज होंगे, जेनेटिसिस्ट इंगेज होंगे। तो ये हमारा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है, प्लस हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी भी है। एक नया जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन ग्रो हो रही है, अभी लिंक खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट के लिए फिर से ज्वाइन कीजिएगा तो मैं कंक्लूड कर लूंगा, अदरवाइज फिर रह जाएगा। फार्माकोविजिलेंस है। फार्माकोविजिलेंस क्या है कि जो भी हम ड्रग्स यूज करते हैं, जो भी मेडिसिन यूज करते हैं, अरे सेफ होना चाहिए अपने को, और कोई क्या टॉक्सिसिटी कर रहा है, क्या अपने को साइड इफेक्ट कर रहा है, या फिर तो गवर्नमेंट ने भी एक फार्माकोविजिलेंस, विजिलेंस मींस नियंत्रण, जांच पड़ताल की, एकदम विजिलेंट रहना है। तो ड्रग का अगर विजिलेंस किया जाए, ड्रग की अगर इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए, उसके टॉक्सिक इफेक्ट की, उसके तो साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स और एनी अदर पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो उसको हम फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। जैसे अभी कोविड का वैक्सीन आ जाएगा थोड़े दिन बाद, सरकार फार्माकोविजिलेंस स्टडी स्टार्ट कर देगी, इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इस वैक्सीन से देने से कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च होता है तो नेक्स्ट 5-10 इयर्स तक उस पर स्क्रीनिंग होती है। हाँ, 10 साल चला, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुल है, तो फेज 4 ऑफ ड्रग ट्रायल कंप्लीट होता है। तो ड्रग ट्रायल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, वो 5 to 10 इयर्स प्रोसेस है। तो आज जल्दी 1-2 साल में वैक्सीन आ भी जाएगी, लेकिन 10 साल तक वो कारगर होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी ड्रग ट्रायल प्रोसेस लंबा होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अभी फिर कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ये हैं। अभी यहाँ पे ब्लॉक करते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं फॉर 10 मिनट्स। ओके, so what we were studying फार्माकोविजिलेंस। so बताया आपको कि फार्माकोविजिलेंस जो है वो ड्रग का विजिलेंस है, ड्रग के दी साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। बेसिकली उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, उसका सर्वे चलता रहता है, और उसके कोई और पॉसिबल साइड इफेक्ट तो नहीं है या ड्रग रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो वो स्टडी जो है फार्माकोविजिलेंस है। और गवर्नमेंट जितने भी मार्केट में ड्रग्स लॉन्च होता है उनका फार्माकोविजिलेंस स्टडी कंटिन्यूअसली करते रहती है। इसीलिए कोई ड्रग आता है 6 महीने में मार्केट से वापस हो जाता है, ड्यू टू फार्माकोविजिलेंस स्टडीज, और उनके अगर इसी के बेस पे उसके रिपोर्ट्स बनते हैं कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो अब थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी डिस्कस करें कि क्या स्कोप है फार्माकोलॉजी का। स्कोप कहने का मतलब है, स्कोप डील्स विद एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट्स, समथिंग ऑपरेट्स, और समथिंग हैज पावर और कंट्रोल। फार्माकोलॉजी का स्कोप कहने का मतलब कि फार्माकोलॉजी पढ़ करके आप कहाँ क्या क्या काम कर सकते हो, कहाँ इनका ऑपरेशन हो सकता है,
कहाँ कहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट, कहाँ कहाँ आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, किन किन एरियाज में आपका कंट्रोल हो सकता है, ये सारे जगहों के बारे में जानेंगे, वो फार्माकोलॉजी का स्कोप होगा। अभी एट प्रेजेंट फार्माकोलॉजी पढ़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, एकेडमिक्स में रह सकते हैं। एकेडमिक्स में अंडर ग्रेजुएट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फार्माकोलॉजी, यस, वो आप काम कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज आप इम्पार्ट कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में ओरिएंट हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज, सो मेनी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, सो मेनी, जो भी मार्केट में ड्रग आप यूज कर रहे हो, आइदर एनी काइंड ऑफ ड्रग हो, वैक्सीन हो, ड्रग हो, या व्हाटएवर इंजेक्टेबल्स हो, उनका मैन्युफैक्चर, उनका रिसर्च, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा जो है इंडस्ट्रीज कंट्रोल करता है, और उसमें सारी जगहों पे फार्माकोलॉजिस्ट अपॉइंटेड। और इसके अलावा सो मेनी अपने डोमेन एरियाज हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि कोर एरियाज हैं, डोमेन एरियाज, उनमें भी कोई रिसर्च, टीचिंग एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी होगा, वहां पे हम इंगेज हो सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारा इतना है, लेकिन फ्यूचर इन एट प्रेजेंट जो है, इसके अलावा कुछ नए एरियाज आएंगे, जैसे न्यू एरियाज होंगे प्रोटियोमिक्स के, फार्माकोजिनोमिक्स के होंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के होंगे, नैनो मेडिसिन के होंगे, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च के होंगे। अब ये क्या क्या है, इनके बारे में थोड़ी देर बाद हम अभी देखते हैं। एट प्रेजेंट जो है हमारा फार्माकोलॉजी का जो यूनिवर्स है, हम रिसर्च में, इंडस्ट्रीज में, एकेडमिक्स में और स्पेशल डोमेन एरियाज, इन चीजों में हम इन्वॉल्व हैं। फिर रिसर्च में हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि अभी तुरंत प्रॉब्लम आया कि कोविड है, तो मोदी जी बोले कि इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे अपील किया कि जल्दी भाई वैक्सीन निकालो। तो उसमें कौन लोग होंगे, उसमें फार्माकोलॉजिस्ट होंगे, इम्यूनोलॉजिस्ट होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट होंगे, वो सारे लोगों की टीम होगी। और वो ड्रग डेवलपमेंट में, अगर उस वैक्सीन को एक ड्रग बोले, वैक्सीन भी एक ड्रग है, ड्रग का क्लासिफिकेशन बताएंगे, तो उसका डेवलपमेंट के सो मेनी स्टेजेस हैं। पहले तो वो ड्रग डिस्कवर होगा, वैक्सीन डिस्कवर होगा, उसके बाद उसका प्री क्लिनिकल स्टडी होगा, प्री क्लिनिकल फेज होगा, क्लिनिक्स में या पेशेंट्स को देने के पहले जो स्टडी होगा वो प्री क्लिनिकल स्टडी होगा, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। क्या क्या होंगे ड्रग डिस्कवरी फेज में, पहला तो एक बार ड्रग डिस्कवर हो गया, किसी ने वैक्सीन बना लिया, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बना लिया, तो उसकी रैंडम स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद उसकी सेरेंडिपिटी या फिर बाय चांस अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, रैशनल ड्रग डिजाइनिंग होगा, उसका डोज का एडजस्टमेंट होगा, डिजाइनिंग ऑफ ए प्रो ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट एज ए ड्रग, अगर उसको किस फॉर्म में दें, उसको कैप्सुलेट करें, इंजेक्शन बनाएं, किसी के साथ प्रो ड्रग बनाएं, ये सारे चीजों पे प्री क्लिनिकल स्टडीज होंगे। इसके बाद फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज में फिर और भी चीजें जो आएंगी कि पहले रैट्स पे, जो लेबोरेटरी एनिमल्स है, इन पे देखेंगे कि इन पे कोई अनटुवर्ड एक्शन तो नहीं होता है, अगर इन्हीं में बहुत खराब रिजल्ट आया तो वहीं पे बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो प्री क्लिनिकल स्टडीज जो इनमें है, दो टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, इन विट्रो एसेज हो सकते हैं, इन विट्रो टेस्ट हो सकते हैं। इन विट्रो टेस्ट में जो लेबोरेटरी एनिमल में इन विट्रो टेस्ट होंगे, उसमें एंजाइम एक्टिविटी स्टडी कर सकते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन करता है, कि साइटोकाइन एक्सप्रेशन करता है, कि रिसेप्टर का मॉर्फोलॉजी चेंज करता है, कि रिसेप्टर के साथ कोई चेंज हो रहा है। तो उन चीजों को हम कल्चर करके, उन चीजों को हम एम्पलीफाई करके, सीक्वेंस करके, क्लोन करके हम स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनिमल को बिना डिस्टर्ब किए हुए। और सेकंड पार्ट होगा इन वाइवो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स की, जब बन गया तो वो वैक्सीन या वो ड्रग उस एनिमल में डायरेक्टली इंजेक्ट करके उनके स्टडीज करेंगे। फिर इसके बाद ये प्री क्लिनिकल स्टडीज में अगर क्लियर होता है, कोविड वैक्सीन इंडिया का प्री क्लिनिकल स्टडी को क्रॉस कर चुका है, अब क्लिनिकल स्टडी में आएंगे। क्लिनिकल मतलब जिस पेशेंट ग्रुप के लिए वो बना है, तो अगर वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स है तो ह्यूमन वॉलंटियर्स में देंगे। तो पहले वॉलंटियर, चूंकि ओपन पब्लिक हॉस्पिटल्स में उसको सप्लाई नहीं कर सकते, पहले टेस्टिंग करनी होगी, तो कुछ ह्यूमन वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे, उसमें एग्रीमेंट बॉन्ड भराएंगे कि इसके ट्रीटमेंट से आपको अगर नुकसान होता है, वी वोंट बी रिस्पांसिबल, ये वो सारे करने के बाद, और उनमें कुछ ऑब्वियसली अंडर मेडिकल सुपरविजन, और उनमें टेस्टिंग, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स फेज 1 के अच्छे आएंगे। फेज 1 का कोविड ट्रायल इंडिया में कंप्लीट हो गया है, क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2 में भी है। फेज 2 में थोड़े से टारगेट ग्रुप्स को फोकस करेंगे, जो कोविड के पेशेंट्स होंगे, इस हॉस्पिटल में फलना 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 यहाँ पे, उसको देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, और ये थोड़े से लार्जर ग्रुप में होंगे, तो वो फेज 2 ट्रायल होगा। इसके बाद फिर फेज 2 में अर्ली फेज 2 है, जिसमें कि 200, 500, 400 लोगों के साथ हो।
उसके बाद लेट फेज 2 है, थोड़ा सा नंबर बढ़ा करके डबल ब्लाइंड स्टडी करेंगे। फिर फेज 3 करेंगे, उसमें 1000, 5000, 10,000 पेशेंट्स में करेंगे। और नॉर्मली ये सारे फेज 3 स्टडी 5 साल 6 साल में जाके कंप्लीट होता है विथ नॉर्मल ड्रग्स। इमरजेंसी बेसिस में हम कुछ कट शॉर्ट करके स्टेप्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और किसी भी न्यू ड्रग डेवलपमेंट में कोई नया ड्रग हमने लैब में बना दिया और कहेंगे कि ये हमारा डिस्कवरी है, उसको यूज करो, बनाना तो इजी है, लैब में हो सकता है हम बना ले, लेकिन वो फाइनली मार्केट में सक्सेसफुल हो वो काफी टाइम लगता है। और आउट ऑफ 100 ड्रग्स में जो है वो 95 ड्रग्स रिजेक्ट हो जाते हैं, 4-5 ही सक्सेसफुल आगे बढ़ते हैं। और फाइनल फेज 3 फेज 4 में आउट ऑफ 1000 1-2 ड्रग जो है वो मार्केट में स्टैब्लिश होता है। तो फेज 4 जो ट्रायल है वो काफी लॉन्ग है। फिर एक सब्जेक्ट है रिवर्स फार्माकोलॉजी, इनफैक्ट वो भी फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच है और आज के दिनों में काफी पॉपुलर है और इसमें काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। रिवर्स फार्माकोलॉजी है क्या? उल्टा फार्माकोलॉजी। उल्टा फार्माकोलॉजी कैसे होगा? जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारे हमारे पूर्वज लोग जानते थे कि इस जड़ी बूटी से बीमारी, डायबिटीज ठीक हो जाती है, इससे ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है, इसको ये हो जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैसे ठीक होता है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन से प्रोटीन्स को वो अफेक्ट करता है, किनका एक्सप्रेशन को एक्सेलरेट करता है, किसको स्लो डाउन करता है। ये सारे नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है। वर्षों से, सदियों से प्रूवन है कि हाँ इसका डायबिटीज में फलना चीज खा लो ठीक हो जाता है, लेकिन कैसे काम करता है इसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हुआ। वो अगर हमको करना हो तो हम उल्टा फार्माकोलॉजी चलाएंगे। नॉर्मल फार्माकोलॉजी क्या है? नॉर्मल फार्माकोलॉजी जो है वो है पहले जो कोई कन्वेंशनल ड्रग बनाया वो किसी लेबोरेटरी एनिमल में दिया, प्री क्लिनिकल स्टडी, वहां से फिर आया तो फिर मैन या एनिमल में दिया, वो क्लिनिकल स्टडी, और इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ उल्टा करेंगे। रिवर्स फार्माकोलॉजी में पहले तो आदमी में हम यूज कर ही रहे हैं, बरसों से हमारे बाबा दादा जमाने से वो यूज हो रहा है। अब उसको फिर रैट में देंगे और रैट में उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स ये निकाल के उसके फिर मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे, तो इसको बोलेंगे रिवर्स फार्माकोलॉजी। पर्पस क्या है? उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका डिटेल फार्माकोलॉजी रिवील करने के लिए कि कैसे होता है वो पता करने के लिए इस साइंस को बोलते हैं रिवर्स फार्माकोलॉजी। और हमारा कंट्री थोड़ा पीछे है। हमारी हल्दी का पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, हमारे नीम के पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, क्योंकि उन्होंने रिवर्स फार्माकोलॉजी पहले करके प्रूव कर लिया। हमारे पूर्वजों के पास उसका पेटेंट नहीं है। तो इसमें भी काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और काफी कुछ किया जा सकता है। एकेडमिक्स में जैसा डिस्कस किया, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टीचिंग, रिसर्च में हमारा एम्प्लॉयमेंट। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हो सकता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में सो मेनी चीजें हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आप एक्सपर्ट होंगे तो कोई भी ड्रग डिस्कवर हो रहा है मार्केट में आने के पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको वही बंदा कर सकता है जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में मास्टर्स किया हो या पीएचडी किया हो या जिसकी एक्सपर्टीज हो। वो क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकता है, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस स्टडी कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कर सकता है, एंटीबायोटिक स्टेवॉर्डशिप कर सकता है, ड्रग यूज सर्वे। इन चीजों पे थोड़ा डिटेल में बताएंगे, वर्ड्स क्या है, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस। आज नेक्स्ट क्लास में कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताएंगे, उसमें थोड़ा डिटेल करेंगे। आपकी एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर फार्मा इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्रीज है, जहां आप रिसर्च, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, मेडिकल वेटनरी एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, मेडिकल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग, ब्ला ब्ला, सो मेनी फील्ड्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। नॉट ओनली दैट, being a pharmacologist, being a veterinarian, you can also be engaged in defense also. आपको पता होगा कि डिफेंस में भी वेटनेरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई बता सकता है कि डिफेंस में वेटनेरियंस का कहाँ पे एंगेजमेंट होता है? आरबीसी का पोस्ट होता है। बताया, गोविंद बताया है, रिमोट वेटनरी कॉर्प्स, आरबीसी में। और इसके अलावा डीआरडीओ का नाम सुना है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डीआरडीओ में भी होता है। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस से रिलेटेड जितना भी रिसर्च, जितना भी टूल्स, टैंक्स और जो भी चीजें बनानी हो, वैक्सीन, वो सारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर हम
सैटेलाइट भेजते हैं मून पे या दूसरे पे भेजते हैं, तो वहां पे भेजने के बाद अगर कोई अनमैन्ड व्हीकल भेजते हैं जहाँ पे डॉग्स को भेजे, तो डॉग पे वहां पे डिफरेंट ट्रायल्स करेंगे, हमारे रोबोट्स उनको इंजेक्शन लगाएंगे, उसका ड्रग स्टडी करेंगे। तो फार्माकोलॉजी का स्पेस में भी स्कोप है कि हमारा ड्रग बिहेवियर, ड्रग का एक्शन स्पेस में चेंज होता है कि नहीं होता है। तो एज ए साइंस हम एक सेंट्रल प्लेस पे बैठे हैं बीइंग अ फार्माकोलॉजी। अगर हम ड्रग्स मेडिसिन को हम डिस्कवर करके उनकी स्टडी करके ना दें तो कोई क्लिनिशियन यूज नहीं कर सकता है। क्लिनिक्स में जो भी प्रिस्क्रिप्शन है हमारे साइंस का कंट्रीब्यूशन है कि वहां से कर सकते लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके बगैर आप कंप्लीट डॉक्टर या डॉक्टर नहीं बन सकते। अब ये फ्यूचर है फार्माकोलॉजी का, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं कुछ बच्चों को असाइनमेंट देता हूँ, प्रोटियोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नैनो मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये 5 टॉपिक के लिए प्रोटियोमिक्स पे 10 मिनट का लेक्चर बनाना है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप बना के अपना पीपीटी शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। कौन इसको शेयर करेगा, कौन करेगा? अपना नाम लिखा है, और क्लासेस में और भी असाइनमेंट्स दूंगा। शुरू के 10 मिनट का इसका कहीं ना कहीं आपके मार्किंग में एडजस्टमेंट होगा, आप निश्चिंत रहो। जो अच्छे परफॉर्मेंस होंगे डेफिनेटली उनका एडवांटेज। हु विल डू? नाम बताइए जल्दी। प्रोटियोमिक्स पे 10 मिनट का इंटरनेट से सर्च करके इंफॉर्मेशन कंपाइल करके बाकी बच्चों को बताना है कि प्रोटियोमिक्स क्या है, क्या स्कोप है, और ये फ्यूचर है, मतलब इनमें ही स्कोप है। इनके बारे में नॉलेज तो कम से कम अंडर ग्रेजुएट में थोड़ी सी तो फोकस हो जाए। प्रोटियोमिक्स पे कौन असाइनमेंट देगा बताओ? नाम बोलना पड़ेगा फिर, अगर खुद से नहीं आएंगे तो। शालिनी सर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। 1 मिनट, अभी जो पूछूंगा वो। शालिनी प्रोटियोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स बताओ कौन देगा? एक बंदा, एक ही। डेट मैं बताऊंगा कब देना है, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। हाँ, सोनी हाथ रेज कर रही है, बताइए। यस सोनी। फार्माकोजेनोमिक्स में। ओके सोनी, ओके सर फार्माकोजेनोमिक्स में बना रहा हूं। हाँ, फार्माकोजेनोमिक्स सोनी ना? हेलो। यस सर। ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सर बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम बताओ। गोविंद। गोविंद। नेक्स्ट। गोविंद। हाँ, गोविंद लिख लिया। नैनो मेडिसिन। सर जीनत परवीन। 1 मिनट, एक बंदा कोई बोलो। सर नैनो मेडिसिन में जीनत परवीन। क्या जीनत परवीन? फिर से बोलो नाम। यस सर। जीनत। जीनत परवीन 41/18। 41। ओके। सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ, टाइम देते हैं 1 मिनट। न्यूट्रास्यूटिकल्स कौन करेगा? सर एक मिनट, इसी से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना है सर। टाइम देंगे आपको। न्यूट्रास्यूटिकल्स कौन करेगा? यस सर। यस नाम सर। बोलो, नाम बोलो। मधुदर्शी। 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 यस सर। अभी आज 5 टॉपिक्स दिया है, फिर कुछ क्लासेस के बाद जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये बच्चों के छोड़ करके 5, और बाय द ये सेमेस्टर, ये ईयर कंप्लीट होगा, एवरीवन विल गेट 1 or 2 अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये कुछ। हाँ, अब जीनत बोलो, क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं पहले ही पूछ रही थी कि सर ये वाला पीपीटी के फॉर्म में बनाना है या फिर अपना हैंड हाँ, नोट्स जैसे बना अब- करके रिप्रेजेंट करना है? नहीं, अभी तो कब खुलेगा नहीं बता सकते। तो हम लोग जिस रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं, स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको मौका दूंगा। आप स्क्रीन शेयर करना, 10 मिनट 12 मिनट जो बताना है अपना बताना। 10 मिनट से ज्यादा का प्रेजेंटेशन नहीं रखेगा, क्योंकि फिर टाइम का प्रॉब्लम होगा, फिर मुझे भी क्लास में कुछ बताना है। ओके सर। तो अभी नहीं, नेक्स्ट वीक, या फिर आप प्रिपेयर कीजिए आफ्टर 1 वीक पहले, दशहरा के पहले देखते हैं कुछ स्टार्ट करें। 1 वीक टाइम देता हूँ। आप लोग हर कोई वर्कआउट करना स्टार्ट करें, जिसका रेडी रहेगा उसका स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आज एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कल का क्लास को रीशेड्यूल करना होगा। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उस समय मैं अवेलेबल हूँ नहीं। और किसी और टाइम पे रीशेड्यूल कर सकते हैं क्या? इवनिंग और कभी दूसरे पे बताएं। यस सर। हाँ, यस टाइम कंफर्म कर दीजिए। टाइम कंफर्म कर दीजिए।
कल का टाइम एक कंफर्म कर दो, कोई एक शाम का। सर 5 बजे। एक बजे ले लीजिए सर। 1 बजे नहीं हो पाएगा। नहीं मेरी सर 5 बजे, सर 5 बजे। 5 Yes, नौ sir, से शाम में थोड़ा 5 प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनो ना, यस सर सुनो। 5 बजे। सर 5 सर 5 बजे साढ़े 5 बजे से ले लीजिए सर। सब फ्री होते हैं सर 5 बजे। 5 बजे, चलो 5 to 6, ठीक है। यस सर। ठीक है, 5 to 6 PM, ठीक है। लेकिन सारे बच्चे आएंगे और वो अटेंडेंस वैसी रहेगी, मान के चला जाएगा कि कल का क्लास हुआ। मैं क्लासेस नहीं छोड़ता, ठीक है। तो और इसके बाद चलो, ये सारे पीपीटीज मैंने वेबसाइट के लिए भेज दिया, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और आपको ग्रुप पे आज तक का पीपीटी मैं भेज दूंगा। स्टडी मटेरियल तो डाल रखा है और कुछ ग्रुप पे जो वेटरनरी फार्माकोलॉजी का ग्रुप बनाया है उसमें कुछ और चीजें एक्टिविटी करते हैं। 1-2 मिनट में बंद करेंगे हम लोग। एक्टिविटी में ये कर सकते हैं कि अभी तक जो पढ़ रहे हैं उससे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और दूसरे लोग आंसर करें। दिस वे हम अपना जेआरएफ का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जेआरएफ का आज से पूजा होगा तो आज से तैयारी करेंगे, ये तो एवरीडे का स्टडी है। और जो पढ़ लें उसको फाइनल कर लें कि जस्ट हमको जेआरएफ के पहले रिवाइज करना और कुछ नहीं। तो जिसके पास भी कोई इंपॉर्टेंट इनपुट है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है। बाकी लोग आंसर करेंगे, मैं भी उसमें आंसर करूंगा, ठीक है। और उस पे ताकि ये पढ़ने का तरीका है कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा लीड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आए उसको शेयर करें। शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी नॉलेज बढ़ती है, नहीं पढ़ाएं तो भूल जाएंगे। ओके, कुछ और पूछना है किसी को? सर एक एग्जांपल आया था। हाँ, कौन? कि पैरासीटामोल, हाँ पैरासीटामोल सर कुछ में काम नहीं करता है ड्यू टू सम एंजाइम दो कि उसको ब्रेक कर दे रहे हैं। हाँ, पैरासीटामोल जो है वो, यस, हाँ बोलो। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है इडियोसिंक्रेसी का। ठीक है, मैं बताता हूँ आंसर। पैरासीटामोल जो है, पहले जो आप जानिए, इट इज नॉट अ सेफ ड्रग। पैरासीटामोल जो है, इसको एस्टामिनोफेन भी बोलते हैं और लीवर डैमेज करता है। और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जहां पे भी हमको लीवर डैमेज इंड्यूस करना हो एक्सपेरिमेंटली, तो हाई डोज ऑफ पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल का इसीलिए जो टैबलेट है या पैरासीटामोल सिरप है, उसका जितना डोज चाहिए उससे बढ़ा के नहीं लेना है। वेरी क्लियर कट लीवर डैमेज करता है। और जब बुखार है तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। यानी किसी और टैबलेट खा रहे हैं तो अब ये तो अब वो लीवर डैमेज करेगा। लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले, सारे अफेक्ट होंगे। इडियोसिंक्रेसी पे हम लोग बात करेंगे। अभी हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से उस पर बात करेंगे। तो इसको फॉर द टाइम बिंग होल्ड पर रखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग बात करेंगे। और कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग एल्स? सर फार्मेसी कोर्स में भी यही सब पढ़ाया जाता है सर, बी फार्मेसी जो एक होता है। फार्मेसी नहीं, फार्मेसी में थोड़ा सा उनका फार्मेसी जो 4 साल का कोर्स है वो ना, नहीं yes, हम लोग फार्मेसी में वो पढ़ते हैं कैसे उसका कंपाउंडिंग हो, कैसे मैन्युफैक्चर हो। वो केमिस्ट्री पार्ट बहुत पढ़ते हैं, फॉर्मुलेशन पार्ट पढ़ते हैं, टैबलेट कैसे बनाया जाए, क्या है। हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, हम बॉडी सिस्टम उसका क्या असर है, क्या, हम डॉक्टरी वाली पढ़ाई पढ़ते हैं, वो फार्मासिस्ट वाला पढ़ाई। लेकिन अब चीजें तो इंटररिलेटेड है, तो फार्मेसी को भी हम फार्माकोलॉजी का पार्ट मानते हैं। लेकिन उसका कोर्सेज में स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 पढ़ते हैं वो तो उनका अलग है। वो फार्माकोलॉजी छोटा पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हम इलैबोरेट करके पढ़ते हैं, हर एक स्पीशीज का, हर एक स्पीशीज में डोज पढ़ते हैं, वो उतना नहीं पढ़ते, वो उसका नहीं पढ़ते, फर्क है। चलो ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। सो ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।